بدلتی دنیا میں ہم کہاں نظر آ رہے ہیں؟ کیا ایڈوانس ٹیکنالوجی صرف ترقی یافتہ ممالک تک محدود ہے؟ کیا گرجتا برستا آگ اگلتا آسمان ہم سے کچھ کہہ رہا ہے؟ کیا یہ مرجھاتی دم توڑتی زمین ہم سے ناراض ہو رہی ہے؟ کیا بڑھتی آبادی اور گھٹتے وسائل پر کسی نے نظر ڈالی ہے؟ کیا قوموں آپ دیکھ رہے ہیں 5 نیوز۔ دس پروگرام از brought to you by فیصلہ آج کرنا ہے اگر کل بچے کو چلنا ہے۔ کراچی 87 آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ہیوی ٹریفک پابندی پر عمل درآمد کرنا صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے وسائل پر بہت سارے ٹاؤنز قابض ہیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ ماضی میں لوگ وسائل کا رونا روتے تھے، اختیارات کا نہیں نیت کا معاملہ تھا، وہی اختیارات وہی قانون ہیں۔ لینڈ ڈپارٹمنٹ کی ریکوری بہتر ہو رہی ہے، مختلف محکمہ جات کی آمدنی میں اضافہ ہوا ہے، اینٹی انکروچمنٹ ڈپارٹمنٹ کی آمدنی میں اضافہ ہوا، بلدیہ عظمی کراچی کی آمدن میں 300 گنا اضافہ ہوا ہے۔ یہ جو پیسے آئے 2018 2019 اور 2020 میں بھی آ سکتے تھے۔ ہم نے 15 اگست سے 30 نومبر تک 1 ارب روپے آمدنی حاصل کی۔ NUCD مد میں سال بھر کی آمدنی 15 کروڑ KMC اکاؤنٹ میں آتی تھی۔ یہ پیسے شہریوں کی ملکیت ہیں جو ہمارے اکاؤنٹ میں منتقل ہو گئے ہیں۔ 30 جون 2025 تک 403 اسکیمیں مکمل کر لیں گے۔ کہتے ہیں جی میئر ڈپٹی میئر کے پاس چلے جاؤ، ملازم ان کے ہیں لیکن کہتے ہیں ہمارے پاس چلے جاؤ۔ ہم نے فائنینشیل مینجمنٹ کو بہتر بنانے کا سلسلہ سٹارٹ کیا 576 ملین روپے کی، 576 ملین یعنی کہ 57 کروڑ 60 لاکھ روپے یہ پروفٹ کمایا ہے ہم نے۔ 576 ملین کا پروفٹ بلدیہ عظمی کراچی کو مل رہا ہے، جس کا فیصلہ ہم نے کیا ہے کہ یہ 576 ملین سے جو ہمارے ملازمین کی ایک گریجوٹی ہے اس کو ہم پے کریں گے۔ تو دوسری جانب کراچی کے کئی علاقوں میں گیس کی شدید قلت نے شہریوں کی زندگی مشکل بنا دی ہے، جس کی وجہ سے لوگ باہر سے کھانا خرید کر گزارا کرنے پر مجبور ہیں۔ مزید تفصیلات دعا غفار کی رپورٹ میں۔ کورنگی کے رہائشیوں کے لیے ناشتہ اور رات کا کھانا بنانا ایک مسئلہ بن چکا ہے۔ جو گیس دستیاب ہے اس کا پریشر اتنا کم ہے کہ کھانا بنانا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے۔ گیس کی عدم فراہمی کے باعث خواتین خطرناک LPG سلنڈر استعمال کرنے پر مجبور ہیں۔ گیس کی پریشانی کم ہو تو بتائے، کبھی وقت بے وقت ہوتی نہیں ہے، اکثر رات کو چلی جاتی ہے، کبھی کبھی یہ دن میں بھی بند کر دیتے ہیں۔ گیس اتنی کم آتی ہے نا کہ ہم لوگ روٹی نہیں بنا پاتے ہم لوگ نا، یہ حال ہے کہ تندور کی روٹیاں کھا کھا کے ہم لوگوں کا حال برا ہو گیا۔ گیس بالکل نہیں آ رہا، اور ہمارے تو پچھلے سال نا جب ہماری عید تھی نا تو وہ چوتھے مہینے عید تھی تب بھی نہیں آیا، ہمارے مہمان ایسے ہی تھے بیٹھے ہوئے۔ روٹی تو پکتی نہیں ہے، گیس اتنی سی گیس آتی ہے، بس سلنڈر بھرواتے گزارا کر رہے ہیں، کوئی گیس ویسے نہیں آ رہی۔ ہاں بل آتے ہی اتنے لمبے لمبے۔ عوام مطالبہ کر رہے ہیں کہ حکومت فوری اقدام کرے اور اس بحران کو جلد سے جلد حل کرے۔ کیمرامین رخسار بیگ کے ساتھ دعا غفار، 5 نیوز کراچی۔ 8 فروری کا دن ملک کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر خان کہتے ہیں کہ اس دن جعلی نمائندوں کو عوام پر مسلط کیا گیا، عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ اس کے باوجود شہر کے لوگوں نے جماعت اسلامی پر بھروسہ کیا۔ سب نے دیکھا کہ جمہوریت کے نام پر سارے ادارے عوام کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ سب نے دیکھا کہ بلدیاتی انتخابات میں بھی نتائج تبدیل کیے گئے۔ الیکشن کمیشن نے فراڈ کمیشن ہونے کا ثبوت دیا۔ یہ ہے جعلی اور کنٹرول جمہوریت کی سیٹیں، جبکہ PP اور MQM کو دی گئی ہیں۔ 1 سال گزر گیا، ٹریبیونل میں کیسز چل رہے ہیں۔ 2 سال ہو گئے بلدیاتی انتخابات کو، لیکن جو ٹریبیونلز بنائے گئے وہ اب تک کچھ نہ کر سکے۔ انفراسٹرکچر تباہ ہے، پانی، سیوریج، ٹرانسپورٹ، سب چیزیں تباہ کر دی گئی ہیں۔ وہ شہر جو پورے صوبے کے ریونیو میں 96% جمع کراتا ہو، وہ شہر جو 42% ٹیکس جمع کراتا ہو، 54% ایکسپورٹ ہو جس کی،
वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी की सुप्रीम काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ट्रांसपोर्टर्स के वफ्द से मुलाकात हुई, जिसकी क़यादत मलिक रियाज अवान कर रहे थे। वफ्द में हाजी अमानुल्लाह, हाजी मोहम्मद शफीक, लाला अफजल, राजा नवीद, हाजी मोहम्मद आशिक, अरशद गुज्जर, सरदार मोहम्मद अशरफ, मोहम्मद बशीर, मुमताज़ अवान समेत दीगर अरकान शामिल थे। वफ्द ने शहर से बसों के टर्मिनल्स की मुंतकली के बावजूद बुकिंग दफातर की बंदिश के अहकामात और दीगर मसाइल पर गुफ्तगू की है। सईद गनी ने कहा कि ट्रैफिक जाम और हादसात में इजाफे के बायस सख्त इक़दामात ज़रूरी हो चुके हैं और लाखों अफराद रोजाना मुतासर हो रहे हैं। उन्होंने वजाहत की है कि हुकूमत किसी ट्रांसपोर्ट बरादरी के खिलाफ नहीं बल्कि तजावुजात और ट्रैफिक की राह में रुकावटों के खिलाफ ऑपरेशन कर रही है। उन्होंने वफ्द को यकीन दहानी कराई है कि वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध की पाकिस्तान वापसी पर बुकिंग दफ्तर के मामले पर बात की जाएगी। कराची बार एसोसिएशन का काफिले की सूरत में कल इस्लामाबाद रवानगी का ऐलान। कराची बार का कहना है कि पीकाएक में सहाफ़ियों को भी हमारे साथ चलना चाहिए। मुनीर ए मलिक ने कहा कि आज हालात 2007 से भी ज़्यादा ख़राब हैं। इस वक्त एक चीफ जस्टिस का सवाल था, आज पूरी अदलिया मुतासर है। वकला की एक बड़ी अक्सरियत तरमीम को आइन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ समझती है। अली अहमद कर्द का कहना था कि वकला तहरीक चलने वाली है, ये तहरीक इस मुल्क में आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। सिंध बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन ने कहा कि 26वीं तरमीम के जरिए मर्जी के जज लाए जा रहे हैं। कराची बार के सेक्रेटरी जनरल का कहना था कि पीकाएक में सहाफ़ियों को भी हमारे साथ चलना चाहिए। तो दूसरी जानिब वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी की ज़ेर सदारत सोहराब गोड टाउन के हवाले से इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में सोहराब गोड टाउन में दरपेश मसाइल, इंक्रोचमेंट, बरसाती नालों और दीगर उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। सईद गनी ने हिदायत की कि डेप्यूटी कमिश्नर ईस्ट टाउन इंतजामिया और पुलिस की मदद से ऐसा लाहे अमल मुरतब करे जो आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम करे। बरसाती नाले और सीवरेज के मसाइल हल करने के लिए टाउन इंतजामिया इकदामात यकीनी बनाए और अगर किसी जगह सिंध हुकूमत की मदद दरकार हो तो फराहम की जाए। उनका मजीद कहना था कि तमाम टाउन्स में इंक्रोचमेंट के खात्मे, निकासियाब के निज़ाम की बेहतरी, सेवरेज और पानी की फराहमी के लिए इकदामात किए जाएंगे। शहर से तजावुजात के खात्मे के लिए जल्द हिकमत अमली मुरतब की जा रही है, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया जाएगा, जबकि बिला तफरी ग्रैंड ऑपरेशन जल्द तमाम टाउन्स में शुरू किया जाएगा ताकि आवाम को दरपेश मुश्किलात से निजात दिलाई जा सके। और अभी जानिए कि नॉर्थ कराची में 7 साला सारिम को मुबैना अगवा और कत्ल का केस, पुलिस ने फ्लैट में ऑपरेशन करके मुतादिद अफराद को हिरासत में ले लिया है। हिरासत में लिए गए अफराद में कम उम्र लड़के भी शामिल। हिरासत में लेने पर मुतादिद अफराद के अहलखाना के पुलिस से तकरार भी हुई है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे यासिर हुसैन से। जी यासिर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। आज बिल्कुल देखिए, 7 साला सारिम जिसका मुबैना तौर पर अगवा उसके बाद कत्ल हुआ था, उसके मुल्जिमान जो है, जो मरकजी मुल्जिम है, वो अब तक जो है पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी है, जबकि तफ्तीश जो है वो पुलिस की जानिब से जारी है। और आज भी पुलिस ने जो है वो रिहायशी इमारत जहां पर सारिम बच्चा जो है वो रहता था, वहां का एक सर्च ऑपरेशन किया है। वहां से कई अफराद को जो है वो अपनी हिरासत में लिया है, जो जिसमें कम उम्र लड़के भी शामिल हैं, जबकि जो अहले खाना है और जो वहां के मकीन है इमारत के, उनका पुलिस के साथ तकरार भी हुई है और उन्होंने ये खदशा जाहिर किया कि पुलिस जो है वो तफ्तीश के नाम पे लोगों को सिर्फ परेशान कर रही है, जबकि जो पुलिस का जो मौकिफ है वो पुलिस ने ये कहा है कि तफ्तीश जो है वो की जा रही है, जबकि डीएनए रिपोर्ट्स का भी इंतजार किया जा रहा है। जी, तफसीलात के लिए शुक्रिया सर। और कराची में हुकूमत सिंध ने ताजिरों की शिकायत के अजाले के लिए 25 रुकनी राब्ता कमेटी तश्कील दे दी है। इसके चेयरमैन वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह होंगे। कमेटी में वजीर सनत, वजीर दाखिला, वजीर बल्दियात, वजीर मेहनत, चीफ सेक्रेटरी, आईजी सिंध पुलिस और समेत अहम हुकूमती और तिजारती शख्सियात शामिल हैं। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, कमिश्नर कराची जुबैर मोतीवाला, जुबैर छाया, चेयरमैन पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स, चेयरमैन आबाद और दीगर ताजिर रहनुमा भी कमेटी का हिस्सा होंगे। ये कमेटी कराची के ताजिरों को सहूलियात फराहम करने और उनकी शिकायत के फौरी अजाले के लिए इकदाम करेगी।
खूबसूरत यादगारें आवाम को सेहतमंदाना तफरीहात की फराहमी का अहम तरीन जरिया है। मली टाउन के चेयरमैन जान मोहम्मद बलोच ने म्यूनिसिपल कमिश्नर आगा समीर खान, मेंबरान काउंसिल मोहम्मद अली, इकबालुद्दीन और डायरेक्टर पार्क सुहेल मुगल के हमरा मंजिल पंप मोनूमेंट की तज़ीन और आराइश के जारी तरक्याती काम का मुआयना किया। जान मोहम्मद बलोच ने कहा कि खूबसूरत यादगारें आवाम को सेहतमंदाना तफरीहात की फराहमी का अहम तरीन जरिया है। मली टाउन की मरकजी और ज़िली शाहराहों की ज़ाहिरी खूबसूरती को बेहतर से बेहतरीन बनाना हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। पार्क, ग्रीन बेल्ट और यादगारों में मौसमी फूलों के साथ सदाबहार फूलों के पौधे भी लगाने की जरूरत है ताकि मली टाउन की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा हो सके। उन्होंने कहा कि हसीन, दिलकश और खूबसूरत यादगारें जहां इलाकों की ज़ाहिरी रौनक का सबब बनती हैं, वहीं लोगों को ज़हनी सुकून और दिलचस्पी का भी सामान मुहैया करती हैं और साथ ही माहौलियाती आलूदगी को कम करने में भी मदद मिलती है। चेयरमैन मली टाउन ने डायरेक्टर पार्क को हिदायत देते हुए कहा कि मली टाउन के तमाम मरकजी और ज़िली शाहराहों की ग्रीन बेल्ट, सेंट्रल आइलैंड और पार्कों की तज़ीन और आराइश के काम जल्द मुकम्मल किए जाएं। मोनूमेंट की देखभाल को यकीनी बनाया जाए। मली टाउन के डिस्पेंसरियों और स्कूलों में दरख्तों की कटाई और मौसमी फूलदार पौधे भी लगाए जाएं। माड़ीपुर टाउन चेयरमैन हुमायूं मोहम्मद खान ने रमजान मुबारक के बाबरकत महीने की आमद के हवाले से सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की अफसरान से माड़ीपुर टाउन हेड ऑफिस में मीटिंग का इनेकाद किया ताकि इस अजीम महीने को आवाम भरपूर एहतमाम और बगैर किसी परेशानी के आसानी से मना सकें। इस मौके पर सिंध सॉलिड वेस्ट इलाके के GM राहील, म्यूनिसिपल कमिश्नर माड़ीपुर टाउन जावेद कमर, अरकान काउंसिल और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर चेयरमैन हुमायूं मोहम्मद खान ने सॉलिड वेस्ट के अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि रमजान की आमद से कबल आपसे मीटिंग रखने का मकसद ये है कि इस बाबरकत महीने के मौके पर माड़ीपुर टाउन के इलाके की सफाई और सुथराई भरपूर तरीके से होनी चाहिए। इस मौके पर आवाम को किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इस सिलसिले में आप अपनी तैयारी पहले से करें और इस हवाले से किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इलाका मकीनों को कोई तकलीफ या शिकायत हुई तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। हुमायूं खान ने इस बात पर जोर दिया है कि मशीनरी, लेबर और स्टाफ में इजाफा करें ताकि आवाम को भरपूर रिलीफ मिले। वाइस चेयरमैन उस्मान परियार ने शिकायत नोट करते हुए कहा है कि मेरे यूसी में काम ना होने के बराबर हैं, इस मसले को फौरी हल करें। GM सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट माड़ीपुर राहील ने कहा कि इंशाअल्लाह तमाम शिकायत का ज़ाला करेंगे। टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मंगोपीर के चेयरमैन हाजी नवाज अली बेरोही ने UC1 इज्तिमा गाह गेट नंबर 4 से मस्जिद जाने वाले रोड की कारपेटिंग के काम का दौरा किया। हाजी नवाज अली बेरोही ने कहा कि हमारी खुशकिस्मती है कि कराची इज्तिमाई हमारी हुदूद में है, जो पाकिस्तान का दूसरा बड़ा इज्तिमा है। इस इज्तिमा में पूरे पाकिस्तान और दूसरे मुल्कों से भी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर हर साल इज्तिमा में शिरकत के लिए आते हैं। हम आने वाले तमाम शुरा को खुशामदीद कहते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी हर मुमकिन कोशिश है कि आने वाले शुरा को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। इज्तिमा में आने वालों के लिए कई रास्ते मौजूद हैं जो मुख्तलिफ मकामात से होकर इज्तिमा गाह पहुँचते हैं। हमारी कोशिश है कि तमाम रास्तों को बर वक्त कारपेटेड करके आवाम के लिए सहूलियात फराहम की जाएँ। हाजी नवाज अली बेरोही ने कहा कि माजी में कभी यहाँ इतना काम नहीं करवाया गया जिस अंदाज में आज यहाँ काम जारी है, जिसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती। ये तरक्की का सफर जारी रहेगा। अपनी इलाकाई आवाम को हर सहूलत देने के लिए हम वक्त तैयार हैं। इस मौके पर उनके हमरा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के सदर आबिद सत्ती, सीनियर नायब सदर सिद्दीक अकबर, जनरल सेक्रेटरी हाजी जमील जिया, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अली अकबर काचेलो, वाइस चेयरमैन राना मोहम्मद आरिफ, म्यूनिसिपल कमिश्नर आगा खलीक, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर समीउल्लाह बेरोही, AEE आफाक आलम, सब इंजीनियर जुनेद सिद्दीकी, इज्तिमा गाह के खादिमीन और अवाम भी मौजूद थे।